Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we have to discuss about the endocrine system, hypothalamus and pituitary gland for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term endocrine system, in which we have to discuss about the influence of hypothalamus and also discuss about the pituitary gland. Today we have discussed about only posterior lobe of pituitary gland and median lobe of pituitary gland. In our next lecture we have to discuss about the anterior lobe of pituitary gland. Now first we define what is the endocrine system. In our previous lecture we also defined that the ductless glands which secrete their secretion directly on blood, these hormones make a system which is called as endocrine system. So it can also be defined as the ductless gland of the endocrine system that secrete their product or hormones directly into the blood is called endocrine system. The major glands of the endocrine system includes the pineal gland, pituitary gland, pancreas, ovaries, testes, thyroid gland, parathyroid gland, hypothalamus and adrenal gland. These all glands combine together and makes a system which is known as the endocrine system, and they are responsible to secrete different hormones which are directly in touch over blood and they move to their respective target organ and show their response, and this all system makes a endocrine system. Now we discuss the endocrine system through this diagram. There are different parts of our body which is responsible for the production of the secretion and makes the endocrine system. For example, hypothalamus, they are responsible for the production of ADH and oxytocin, which also parathyroid gland which release the parathyroid hormone, pineal gland which is responsible for melatonin hormone, and there are other body parts which are responsible for producing different glands. And in our endocrine system we discuss one by one these all organs and their hormones, and also discuss about their effect on our body part. और ये जो आपके पास जो सारे जो ऑर्गन्स हैं जिनसे सिक्रेशन रिलीज हो रही है, सारे जो मिलकर आपके पास जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इनकी सारी सिक्रेशन जो है वो डायरेक्टली इंटर होती है ब्लड के अंदर. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज अ, आपके पास जो होंगे डायरेक्टली इंटर हो रहे हैं क्योंकि ये ब्लड के अंदर, और इनकी सिक्रेशंस को हम इसलिए क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. और ये जो हम पढ़ेंगे उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे. और जो आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम में जिसके बारे में पढ़ना है वो हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है. और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमने दो लोब्स को डिस्कस करना है. एक आज हमने पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब को डिस्कस करेंगे. now सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ब्रेन which is present in the forebrain, and basically it control the involuntary action of our body, but they also produce special neurosecretory cells which act on the endocrine gland. आपके पास जो हाइपोथैलेमस है हमने ब्रेन में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन का पार्ट था, और ये बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता था. हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स थी, जो प्राइमरी नीड्स थी, जो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, वो हमारा सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था. इसी तरह जो हाइपोथैलेमस है वो स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को सिक्रीट करता है विच एक्ट एज अ हार्मोन
और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टिमुलेटिंग फैक्टर एज वेल एज इनहिबिटरी फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये जो प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस होते हैं, और ये जाकर जो है मुख्तलिफ जो है आपकी बॉडी ऑर्गन्स में जाके स्टोर होते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उसके मुताबिक ये वर्क करते हैं। इसको फर्दर हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। आपके पास जो ये आपके पास ब्रेन है, ब्रेन का जो आपको ये पार्ट दिखा रहे हैं जिसको उन्होंने जूम जो है और ज़्यादा जो है बड़ा करके दिखा रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं कि ये आपके पास हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को सिक्रीट करता है, और वो जब डिफरेंट टारगेट सेल्स पर ऐड करेगा, अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड कर रहा है, अगर वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड कर रहा है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एडीएच एंटीडियूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। अगर वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो रिलीज हुए हैं हाइपोथैलेमस से, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो क्या होंगे, जो एंटीरियर लोब्स में जो मुख्तलिफ हार्मोन्स है वो सिक्रीट होंगे। इसी तरह अगर ये आपके एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करता है हाइपोथैलेमस से, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो आपके पास एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर एक्ट करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करेंगे तो वहाँ से आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होंगे, जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस और रेस्ट कंडीशन में आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म है उसे मेंटेन करेंगी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी हाइपोथैलेमस डिफरेंट न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रीट होते हैं विच एक्ट ऑन द डिफरेंट टारगेट सेल्स। अगर वो उनमें से अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पे एक्ट कर रहे हैं तो उनकी वजह से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होंगे, फॉर एग्जांपल एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और अगर एंटीरियर लोब पे एक्ट कर रहे हैं तो उनकी वजह से डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होंगे और वो टारगेट सेल्स पर जाकर एक्ट करेंगे। इसी तरह का न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आपके जो है एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहे हैं तो वो जो हैं आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे, जिसके वजह से कि आपकी बॉडी में जो है वो जो मेटाबॉलिज्म, जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन किया जाएगा, जो फाइट एंड फाइट कंडीशन में जो है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस है और वो उसके जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे, और उसकी वजह से मुख्तलिफ टारगेट सेल्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो था हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस जो है वो कैसे जो है वो एक्ट कर रहा है ऑन एंडोक्राइन सिस्टम पे, और जिसकी वजह से जो है टारगेट सेल्स जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट जो है हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। बेसिकली दे आर लोकेटेड इन ब्रेन एंड दे आर अटैच्ड विद द सेरिब्रम ऑफ अ स्मॉल स्टाक कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। अब आप ये देखेंगे आप हाइपोथैलेमस से अगर आप ये नीचे देखें तो क्या एक आपको स्मॉल ये राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ द साइज ऑफ पी सीड, और ये जो मटर के दाने का इसका क्या है साइज़ होता है, और तकरीबन 0.5 ग्राम इसका वेट है। और बेसिकली इसके 3 लोब्स हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब। तो आज हमने जो पढ़ना है वो पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम हम इंटीरियर लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये फर्दर हमें कैसे नज़र आता है। जब हम इसे जूम करके देखते हैं तो ये देखें जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है ये फर्दर क्या जिसके साथ आगे जाके अटैच किया हुआ है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। इस इन्फेंडिबुलम से आगे आपके पास क्या दो आपको ये वाजे लोब्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, एक को हम पोस्टीरियर लोब बोलेंगे, एक को एंटीरियर लोब बोलेंगे, और इधर ये वाली जो स्टॉक जो बना रही है जो इधर आप जिसे हमने इन्फेंडिबुलम बोला है इसके दरमियान में जो ये मौजूद है इसे हम बोलते हैं मीडियन, और ये इस लोब को हम बोल देते हैं मीडियन लोब। और बेसिकली इस तरह इसके 3 लोब बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं, एक को हम इंटीरियर लोब बोलेंगे, एक को हम पोस्टीरियर लोब बोलेंगे, और जो दरमियान में मौजूद है उसे हम मीडियन लोब बोलेंगे।
और हर जो लूब है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या होगा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो उनको स्टिमुलेट करेंगे और फर्दर मोर इनसे हार्मोन रिलीज होंगे और वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की कि पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर लोब से जो है वो दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो है वो एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हेन द शॉर्टेज ऑफ वाटर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अब्जॉर्ब द वाटर इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले जो ऑफ द किडनी। क्या होता है कि आपने किडनी जब हमने चैप्टर आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस का जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था, तो उसमें आपने ये बात आपको बताई थी कि लूप ऑफ हैंडले में आपके पास एक डिसेंडिंग लूप होती है और एक असेंडिंग लूप होती है। तो मुख्तलिफ उसके अंदर आपने इसको भी डिस्कस किया था कि एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है जो कि डिसेंडिंग लूप में जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो वो आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है जो कि करेगा एब्जॉर्ब करेगा उस मोर वाटर को, जो है किडनी को हेल्प करेगा कि वो किडनी पे जा के एक्ट किया और किडनी ने जो है मोर वाटर को क्या किया एब्जॉर्ब किया। और वो कहाँ से किडनी सबसे ज़्यादा जो नेफ्रॉन्स है वो किधर से एब्जॉर्ब कर रही थी, वाटर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से वाटर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ताकि वाटर की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जाए और जो होम्योस्टेसिस है उसको जो बॉडी में होम्योस्टेसिस को बरकरार रखा जाए। तो ये तो था एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं और एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और बेसिकली ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस के सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या हुआ कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है प्रोड्यूस हुए वो एक्ट करेंगे एज अ स्टिमुलस के तौर पे और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस हुए। जब ब्रेन ने ये डिटेक्ट किया कि पानी की शॉर्टेज है, जब बॉडी में पानी की शॉर्टेज होती है तो ब्रेन का पार्ट जो हाइपोथैलेमस है वो डिटेक्ट करता है कि पानी की शॉर्टेज हो रही है। तो उसको जब वो डिटेक्ट करता है देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को प्रोड्यूस करेगा दैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन एंड दिस एंटीडायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन act on the descending loop of Henle which are responsible for the reabsorption of water from the nephron or kidney। और नेफ्रॉन या किडनी से जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगी एंड ब्रिंग्स द होम्योस्टेसिस और जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाएगा। तो ये तो था एंटीडायरेटिक हार्मोन के बारे में। फिर सेकंड हार्मोन जो आपके पोस्टीरियर लोब में रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस वो है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो बेसिकली फीमेल हार्मोन है, ये ओनली फीमेल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब भी हाइपोथैलेमस जब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे हाइपोथैलेमस से और वो ऑक्सीटोसिन को जो है वो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं दीज हार्मोन्स जो ऑक्सीटोसिन से प्रोड्यूस हो रहा है वो जाकर स्टोर हो जाएगा किधर, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। जब आपके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुए और जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ एंड देन दे आर स्टोर इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेस द लेबर पेन। जब ड्यूरिंग बर्थ चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेन होती है उसकी जो वजह है वो एक ऑक्सीटोसिन है कि ये प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से लेबर पेन होती है एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस से मुराद ये होता है कि डायलेशन ऑफ द सर्विस जो एरिया है ताकि जो बर्थ का प्रोसेस है वो इजीली टेक्स प्लेस हो सके और बच्चा जो है वो इजीली जो है वो पास ऑन हो सके और बाहर आ सके। तो डायलेशन ऑफ द सर्विस जो है वो भी इस हार्मोन की वजह से होती है। इसी तरह मिल्क एजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, जो मिल्क जो एजेक्शन है जब बच्चा जितना
जो है मेमरी ग्लैंड को सक करेगा उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से मिल्क की इजेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, मिल्क इजेक्शन ज़्यादा होगी। मिल्क प्रोडक्शन के लिए अलग हार्मोन होता है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द मिल्क इंजेक्शन। तो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि ऑक्सीटोसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देते हैं, फॉर मिल्क इंजेक्शन, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, या वो कह देते हैं नन ऑफ दिस, या बोथ ए एंड बी। तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट जो है बोथ ए एंड बी कर देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इंजेक्शन, दे आर नॉट इन्वॉल्व फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये जो है मिल्क इंजेक्शन के लिए इन्वॉल्व है। तो इसके बाद और ये प्रोड्यूस और यह फीमेल हार्मोन है, और जिसकी वजह से जो है वो एक मिल्क इंजेक्शन का प्रोसेस इजी होता है, और जो चाइल्ड बढ़ता है उसमें ये क्या करता है, ये फेवर करता है ताकि जो है इजीली जो है वो बर्थ का प्रोसेस हो सके। तो ये दो मेन हार्मोन्स थे जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। फिर अगर हम डायग्राम से इसको कंसीडर करें तो ये देखें, ये आपके पास ये न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स हैं अंडर ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स मूव करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स, एंड दे एक्ट ऑन द पोस्टीरियर लोब। ये देख रहे हैं आप, पोस्टीरियर लोब पर एक्ट करेंगे, ये एंटीरियर लोब है। तो ये पोस्टीरियर लोब पर जैसे ही एक्ट करेंगे तो वहाँ से आपके पास ये फर्दर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। ब्लड वेसल से ये आपके पास न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स मूव करेंगे, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द रिलीजिंग द ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडोरेटिक हार्मोन। और जो ये ब्लड वेसल से मूव करके जो आपके पास ये हार्मोन्स आ जाएंगे, कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे, ऑक्सीटोसिन और एंटीडोरेटिक हार्मोन। जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमरी ग्लैंड और यूट्रस मसल पे एक्ट करेंगे, और जो आपके पास एंटीडोरेटिक हार्मोन है वो किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे एक्ट करेगा ताकि वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये तो था पोस्टीरियर लोब के बारे में कि कैसे पोस्टीरियर लोब से हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह जब हम एंटीरियर लोब की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स जो है वो एंटीरियर लोब पे एक्ट कर रहे होंगे, और उसके बाद जो है डिफरेंट हार्मोन्स हमारे पास रिलीज होंगे और वो डिफरेंट टारगेट सेल्स पे एक्ट करेंगे। तो आज जो था वो हमारा पोस्टीरियर लोब के बारे में था कि पोस्टीरियर लोब से कैसे जो है कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम मीडियन लोब की बात कर लेते हैं। मीडियन लोब से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और बेसिकली ये जो है वो आपको पता है कि मेलानिन जो है वो स्किन सेल्स ने कंटेन किया होता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनेस ऑफ कलर, या आप समझिए कलर में आपकी जो स्किन का कलर जितना डार्क होता जाता है वो बेसिकली मेलानिन की वजह से होता जाता है, या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से वो डार्क होता जाएगा। और ये जो मेलानिन जो है बेसिकली क्या है, ये जो इसकी जो अमाउंट है दे आर डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर इंटरनल स्ट्रेस है या एनवायरनमेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से क्या होगा, मेलानिन बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी। मेलानिन बेसिकली क्या है, पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेशन है, जिसकी वजह से जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाएगा। और जो आपके पास ये जो मेलानिन है ये इसकी जो प्रोडक्शन है ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हमें जो है वो फेयर कलर में नज़र आती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फीमेल के अंदर जो पिगमेंटेशन हो जाती है, आप कहते हैं वो जैसे हम कहते हैं जैसे छाइयाँ पड़ गई हैं, या जो है वो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आई के नीचे और पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो भी जो रीज़न है उसकी यही रीज़न है कि वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क जो है छाइयाँ वगैरह, या आप जाएंगे आई के नीचे जो सर्कल्स आ जाते हैं, ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम यूवी लाइट, ये जो यूवी रेडिएशन उनसे बचाएगी, और इसके अलावा जो है डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एपेटाइट, जो है ये हमारी जो पिगमेंटेशन और जो भूख है उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है।
और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हमारी जो है पिगमेंटेशन करना, हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन करना, हमारी स्किन का जो कलर डार्क होता है वो ड्यू टू मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से होता है। और ये बेसिकली कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, मीडियन लोब ऑफ दी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं। तो आज तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिस्कस किया कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट है और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट हार्मोन एंड दे मेक अ सिस्टम विच इज़ नोन एज अ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें से सिर्फ आज हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में से आपके पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।